کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میت کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو نیک اور صالح شخص کو، نیک انسان کو، نیک آدمی کو، ایک مومن کو اس کی قبر میں بلا خوف و خطر، بلا روب کے، بلا خوف کے بیٹھا کر کے اس سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، اور دو فرشتے جس کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے ان سے سوال کرتے ہیں، مَن رَبُّک، تمہارا رب کون ہے؟ پھر اس سے سوال کرتے ہیں کہ مَن رَبُّک، تمہارا رب کون ہے؟ تو جواب دیتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگر اس نے ایک اللہ کی عبادت کی ہوگی دنیا میں تو بآسانی وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجنائز کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار یقال هذا مقعدک حتی یبعثک اللہ یوم القیامہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح شام پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے تو اہل جنت کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے، وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے تو اہل جہنم کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے، یقال، اس سے کہا جاتا ہے، هَذَا مَقْعَدُكَ، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ کل قیامت کے دن تم کو اللہ رب العالمین کی حالت میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ وعملہ ومالہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں جاتی ہیں؟ تین چیزیں، اہلہ وعملہ ومالہ، اس کے اہل و عیال، اس کے اہل اولاد، اس کے اہل و عیال، وعملہ، اور اس کا عمل، ومالہ، اور اس کا مال، فیرجع اثنان، پس دو چیزیں قبر کے اوپر سے ہی واپس لوٹ کر کے چلے آتے ہیں، اہلہ ومالہ، اس کے اہل و عیال اور اس کا مال اس کی قبر کے اوپر ہی سے لوٹ کر کے چلے آتے ہیں، وَيَبْقَى واحد، اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور صرف اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے اور اس کے عمل کے مطابق ہی اس کے بھائیوں، تدفین میت کے بعد میت کو اس کی قبر دبوچتی ہے، دباتی ہے، اگرچہ میت نیک اور صالح کیوں نہ ہو، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کو بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی بڑے انصاری صحابی گزرے، تو اس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس کی موت آئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، یہ جس کے لیے، جس کی وفات پر، جس کی موت پر رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا، هَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، وَشَهِدَهُ 70 أَلْفًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اور جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، لَقَدْ زُمَّ زَمَّةً ثُمَّ خُرِّجَانُ، اس کو بھی قبر میں دبوچا، دبایا، پھر اس کے لیے کشادگی اور کھلی ہو گئی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان کرتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، إِنَّ لِلْقَبْرِ زَغْتَةٌ لَوْ نَجَا مِنْهَا أَحَدٌ لَنَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذ، کہ بے شک قبر ہر نیک و بد کو دبوچتی ہے، ہر میت کو دبوچتی ہے، دباتی ہے، اگر اس سے کوئی محفوظ رہتا
تو साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु जरूर महफूज रहते। याद रहे मेरे भाइयों, साहबे रसूल हजरत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु के कब्र में दबोचने के ताल्लुक से अल हकीम तिरमिज़ी ने जिक्र किया है कि वो पेशाब के छींटे से बचने में कोताही करते थे, इसलिए कब्र ने उसको दबोचा। और मौलाना अताउल्लाह हनीफ ने अपनी किताब अत-तालिक़ात सल्फिया में अल हकीम तिरमिज़ी का यह कौल नकल करने के बाद उन्होंने सुनन बहकी की हवाला दिया है और उन्होंने अबुल कासिम सादी से नकल किया है कि बेशक कब्र हर नेक व बद को दबोचती है, लेकिन मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क यह है कि जब भी काफिर को कब्र में उतारा जाता है, कब्र में दफन किया जाता है, उस वक्त से लेकर के कयामत तक कब्र उसको दबोचती है और दबाती रहती है। और मोमिन को जब कब्र में दफन किया जाता है, उस वक्त कब्र मय्यत को दबोचती है और दबाती है, उसके बाद वो कुशादगी और खुली हो जाती है। मेरे भाइयों, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि कब्र में मय्यत से सवालात किए जाते हैं, जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत में बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक मय्यत को जब कब्र में दफन कर दिया जाता है तो नेक और सालिह शख्स को, नेक इंसान को, नेक आदमी को, एक मोमिन को उसकी कब्र में बिला खौफ व खतर, बिला रोब के, बिला खौफ के बैठा करके उससे सवाल किया जाता है, पूछा जाता है। और दो फरिश्ते जिसको मुनकर नकीर कहा जाता है, दो फरिश्ते आते हैं और आकर के उनसे सवाल करते हैं, मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? फिर उससे सवाल करते हैं कि मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? तो जवाब देता है कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अगर उसने एक अल्लाह की इबादत की होगी दुनिया में तो बासानी वो जवाब दे देगा कि मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे सवाल किया जाता है कि तुम किस हालत में थे? मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या था? तो जवाब देगा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे सवाल किया जाता है, पूछा जाता है मन नबी, तुम्हारा नबी कौन है? या फिर उससे यह सवाल किया जाता है कि इस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो जवाब देता है कि हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्होंने हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की आखिरी निशानी, आखिरी किताब कुरान मजीद को लेकर के आया और हमने इनकी तस्दीक की, इनकी बातों को माना। फिर उससे सवाल किया जाता है कि क्या तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखा है? तो कहता है कि नहीं, ये किसी के लायक ही नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखे। फिर मेरे भाइयों, उसके लिए सबसे पहले जहन्नम की तरफ एक छोटा सा सुराख किया जाता है। चुनांच वो जहन्नम की तरफ देखता है कि जिसके एक शोले दूसरे शोले को खा रहे होते हैं, जहन्नम की होलनाकियों को देखता है, वहां के अजाब को देखता है। फिर उससे कहा जाता है देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमसे इसको कैसे फेर दिया, हटा दिया। फिर उसके लिए जन्नत की तरफ एक छोटा सा सुराख किया जाता है। फिर उससे चुनांच वह जन्नत की शादाबी और उसकी नियामतों की तरफ देखता है, उसकी रंगीनियों की तरफ देखता है। तो उससे कहा जाता है कि देखो ये तुम्हारा ठिकाना है, क्योंकि तुम दुनिया में ईमान पर थे और ईमान पर ही तुम्हारी मौत आई और ईमान पर ही तुम्हें कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। इसलिए कि तुम दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजार करके आए। तुमने दुनिया में शैतान की इत्तिबा और पैरवी नहीं की, ख्वाहिशात नफ्स के पीछे नहीं पड़ा, ख्वाहिशात नफ्स के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं चला, बल्कि काल अल्लाह और काल रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक चला। इसलिए आज तुम्हारा ठिकाना जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत। और मेरे भाइयों, फासिक व फाजिर, काफिर और मुनाफिक को, गुनहगार को उसकी कब्र में खौफ और रौब की हालत में, डर की हालत में बैठाया जाता है और उससे सवाल किया जाता है तुम किस हालत में थे, तुम्हारा दीन क्या है? मा दीनुक, तो कहता है ला ला हादरी, नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर उससे सवाल किया जाता है इस शख्स के बारे में तुम क्या कहते हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया जाता है। वो कहता है कि मैंने लोगों से जो कहते हुए सुना मैंने भी वही कहा, यानी मैंने उसके ऊपर ईमान नहीं लाया, ईमान नहीं रखा। तो सबसे पहले मेरे भाइयों, फरिश्ते उसके लिए जन्नत की तरफ एक छोटा सा सुराख करते हैं।
चुनाच वो जन्नत की शादाबी, उसकी नियामतों को देखता है, उसकी रंगीनियों को देखता है, फिर उससे कहा जाता है देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमसे इसको कैसे फेर दिया, हटा दिया, अलग कर दिया। फिर उसके लिए जहन्नम की तरफ एक छोटा सा सुराख किया जाता है। चुनाच वो जहन्नम की तरफ देखता है जिसके एक शोले दूसरे शोले को खा रहे होते, जहन्नम की होलनाकियों को देखता है, जहन्नम के अजाब को देखता है, तो उससे कहा जाता है यही तुम्हारा ठिकाना है। क्यों? इसलिए कि तुम दुनिया में शक पर थे और शक पर ही तुम्हारी मौत आई और शक पर ही कल क़यामत के दिन तुमको उठाया जाएगा। इसलिए कि तुम दुनिया में ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक जिंदगी गुजार करके आए, शैतान की इत्तिबा और पैरवी करके जिंदगी गुजार करके आए। तुमने दुनिया में क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हुए और उसके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करते हुए जिंदगी गुजार करके नहीं आए। इसलिए आज तुम्हारा ठिकाना ये जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम। इसी पर तुम्हें कल क़यामत के दिन उठाया जाए। तो ये मेरे भाइयों, कब्र में इस तरीके से सवालात किए जाते हैं, और अगर हम मोमिन होंगे, पक्के सच्चे मुसलमान होंगे, तो फिर फरिश्तों के सवालात के जवाबात हम दे देंगे, वरना फिर हमारे लिए कब्र जहन्नम का दहकता हुआ टुकड़ा बन जाएगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, कब्र में मैयत को उसका ठिकाना सुबह और शाम पेश किया जाता है, दिखाया जाता है। जैसा कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी किताबुल जनाइज की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद करानी है, इन्ना अहदकुम इज़ा माता उरिदा अलैहि मक़अदहु बिल गदाति वल अशी इन कान मिन अहलिल जन्ना फमिन अहलिल जन्ना व इन कान मिन अहलिन नार फमिन अहलिन नार युक़ालु हाज़ा मक़अदुका हत्ता यबअसका अल्लाहु यौमल क़ियामा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक जब तुम में से कोई शख्स मर जाता है तो उस पर उसका ठिकाना सुबह शाम पेश किया जाता है। अगर वह अहले जन्नत में से होता है तो अहले जन्नत का ठिकाना उस पर पेश किया जाता है। वह इनकान मिन अहलिन नार, अगर वह अहले जहन्नम में से होता है तो अहले जहन्नम का ठिकाना उस पर पेश किया जाता है। युक़ाल, उससे कहा जाता है, हाज़ा मक़अदुका, ये तुम्हारा ठिकाना है। हत्ता यबअसका अल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामा, यहाँ तक कि कल क़यामत के दिन तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी हालत में खड़ा कर देगा। तो गोया कि मैयत पर उसका ठिकाना सुबह शाम कब्र में या आलम बरज़ख में पेश किया जाता है, दिखाया जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि हम कब्र के लिए तैयारी करें। हजरत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत वो बयान करते हैं कि हम एक जनाजे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हम एक जनाजे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठे रो रहे थे, और आप इस कदर शदीद रोए, इतने रोए कि आंसुओं से आपके नीचे की मिट्टी तर हो गई, भीग गई। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या इख्वानी लिमिस्ल हाज़ा फ़अइदू, ऐ मेरे भाइयों तुम भी इस तरह के दिन के लिए तैयारी कर लो। मेरे भाइयों, इस हदीस में बताया जा रहा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठे रो रहे थे, और आप इस कदर शदीद रोए कि आंसुओं से आपके नीचे की मिट्टी तर हो गई। इससे मालूम होता है कि कब्र मकाम इबरत है। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बेशतर कब्रिस्तान जाया करते थे, और आपने अपनी उम्मत को भी यही हुक्म दिया तो कब्रिस्तान जाया करें, इसलिए कि इससे आखिरत याद आती है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाना, या इख्वानी लिमिस्ल हाज़ा फ़अइदू, ऐ मेरे भाइयों तुम भी इस तरह के दिन के लिए तैयारी कर लो। ये इस बात की दलील है कि हमें कब्र की जिंदगी के लिए तैयारी करनी चाहिए, और इसके लिए तैयारी सिर्फ ईमान और अमल सालेह के साथ ही हो सकती है, क्योंकि कब्र में इंसान का वाहिद साथी उसका अमल होगा, और उसके अमल के मुताबिक ही उसके साथ सुलूक किया जाएगा। अगर उसने दुनिया में अच्छा अमल करके गया होगा तो उसके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा, अगर उसने दुनिया में बुरा अमल करके गया तो फिर उसके साथ बदतर से बदतरीन सलूक किया जाएगा। जैसा कि सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत को बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतबाउल मय्यत सलासतुन,
अहलुहु व अमलुहु व मालुहु फयरजिउ इत्नान व यबका वाहिद यरजिउ अहलुहु व मालुहु व यबका अमलुहु। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक शख्स मर जाता है तो उसके पीछे तीन चीजें जाती हैं। कितनी चीजें जाती है? तीन चीजें। अहलुहु व अमलुहु व मालुहु, उसके अहल अय्याल, उसके अहल औलाद, उसके अहल अय्याल, व अमलुहु और उसका अमल, व मालुहु और उसका माल, फयरजिउ इत्नान, बस दो चीजें कब्र के ऊपर से ही वापस लौट करके चले आते हैं। अहलुहु व मालुहु, उसके अहल अय्याल और उसका माल उसकी कब्र के ऊपर ही से लौट करके चले आते हैं। वयबका वाहिद, और एक चीज बाकी रह जाती है, वयबका अमलहु, और सिर्फ उसका अमल बाकी रह जाता है और उसके अमल के मुताबिक ही उसके साथ सलूक किया जाएगा। मेरे भाई इस हदीस में गौर करें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बात कही है कि जब एक इंसान मर जाता है तो उसके पीछे कितनी चीजें जाती है? तीन चीजें, और दो चीजें उसके कब्र के ऊपर ही से वापस लौट करके चले आते हैं। उसके अहल अय्याल, उसके घर वाले और उसका माल। जिस आल औलाद की परवरिश और अच्छे खिलाने और पिलाने के लिए और अच्छी रिहाइशगाह दिलाने के लिए और अच्छी तरीके से परवरिश करने के लिए उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। जिस आल औलाद को खुश और खुर्रम रखने के लिए उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से बगावत की, और जिस माल और दौलत को जमा करने के लिए इसने ये नहीं सोचा आया ये माल हलाल का है या हराम का है, सूद का या ब्याज का है। मेरे भाइयों, जिस माल और दौलत को उसने कितने ही ज्यादा मेहनत और मुशक्कत करके जमा किया था, आज उसका माल और दौलत कुछ काम नहीं आएगा। उसकी कब्र के ऊपर ही से वापस लौट करके चले आएंगे मेरे भाइयों। इसलिए खबरदार, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी कहा क्या ईमान वालों, कहीं तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिक्र से गाफिल तो ना कर दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों, कहीं तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिक्र से गाफिल तो ना कर दे। इसलिए मेरे भाइयों, खबरदार, जिम्मेदारी है अपनी जगह पर उसको अदा कीजिए, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को तर्क कर दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से गाफिल हो जाए और मौत और आखिरत को हम भुला बैठे। नहीं मेरे भाइयों, इसलिए हमें और आपको चाहिए, जरूरत इस बात की है कि हम ज्यादा से ज्यादा मौत को याद करें और ज्यादा से ज्यादा मौत और मौत के बाद आने वाले मराहिल के लिए तैयारी करें, कब्र और इसके बाद आने वाली मंजिल के लिए ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ बारेला तो हमें 5 वक्त तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा।